इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত এখান থেকে গিয়ে আমরা বেলা 12:30টার সময় কোভিড নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে। সেই মিটিং ডাকার পরে এগুলো কি করব না করব আপনাদের আমরা ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবো, 3টের সময় প্রেস করে জানিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়। আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল, সেই জন্য কেউ কিছু মনে করবেন না, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। কোভিড সিচুয়েশানে আপনারা অনেক করেছেন, সবাইকেই আমাদের আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করতে পারিনি বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন, প্যান্ডামিক সিচুয়েশন। বাট কোভিড শেষ হয়ে গেলে আমরা ব্রিগেডে সেলিব্রেশন করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে আমার গেস্ট থাকবেন। আমি বাইরেরও সকলকে ইনভাইট করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন গভর্নরকে মাইক দিচ্ছি। तो ममता बनर्जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि वो एक मीटिंग करेंगी कोविड-19 को लेकर, और क्या करना है क्या नहीं इस बात की जानकारी वो देंगी। Mamta Bandyopadhyay, for her 3rd term, I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps. When I indicated to her, our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a 3rd term in a row, and I'm sure she would do it. There are occasions when the state faces a crisis. We have to rise above partisan interests. We have to reach a level where governance reaches to expectations as per our preamble. My best wishes, ma'am, to you, to your entire team, and I'm sure you will script a new governance pattern where there will be cooperation from one and all, and the state will prosper and go ahead. Thank you so much. My greetings to all of you on this occasion. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম
কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিসিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব, কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। तो ममता बनर्जी ने अपील की कि बंगाल शांति पसंद जगह है, तो लोग हिंसा ना करें, जो लोग हिंसा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 3 मार्च से शासन और प्रशासन चुनाव आयोग देख रहा है, इसीलिए ये हिंसा हुई है और अब जब वो मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं और जब उनकी सरकार काम करेगी तो उनकी प्राथमिकता होगी कि इस हिंसा को रोका जाए। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो हिंसा ना करें, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी कानून के अनुसार। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने जब माइक लिया तो उन्होंने भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। वो पूरी उम्मीद करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री राज्य में शांति स्थापित करने को ही प्राथमिकता देंगी। उम्मीद है कि संविधान का पालन होगा, राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद ममता बनर्जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, उन्होंने कहा कि कोविड की जो सिचुएशन है, जो हालात है, उन्हें लेकर वो एक बैठक करेंगी और क्या किया जाना चाहिए, क्या वो करेंगी, इसकी जानकारी भी वो लोगों को देंगी। हर्षवर्धन जी, आपने ममता बनर्जी को भी सुना और जगदीप धनखड़ को भी सुना। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस तरह से कहें, लेकिन शायद परिस्थिति ऐसी है कि ये संबोधन भी जरूरी था। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये बहुत अप्रत्याशित परिस्थितियां थी, लेकिन बेहतर होता कि राज्यपाल महोदय शपथ ग्रहण के मौके पर ये बात नहीं करते। राज्यपाल के पास संवैधानिक दायित्व जो शपथ ग्रहण के समय का है उससे थोड़ा सा आगे गए। ये अब इसको जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं वो उस पर चर्चा करेंगे। बेहतर होता कि वो अपनी रिपोर्ट भेजते। उनके पास पूरा अधिकार है कि राज्य की रिपोर्ट वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर है और जो संघीय ढांचा है वो उनको बहुत ज्यादा अधिकार देता है, बहुत गुंजाइश है उनके पास। यहां ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा ये रहा कि उन्होंने भी ये कहा कि आप गवर्नेंस और बेहतर तरीके से जो राज्य में हिंसा हो रही है इसको रोकेंगे, और ममता बनर्जी ने उसे स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा का दौर था वो चुनाव आयोग का दौर था, तो ये मेरे ख्याल से एक तरीका था कि अब हम आए हैं तो हम सुधारेंगे। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम आज से ही, और जो पहले घटनाएं हुई हैं उस पर लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। आज से तो किसी की जान माल पर खतरा नहीं हो। बिल्कुल। जयंत भट्टाचार्य जी, मुख्यमंत्री ने 2 प्राथमिकता बताई। एक, कोविड को लेकर उन्होंने कहा कि वो बैठक करेंगी तुरंत, और दूसरा, हिंसा रोकने की बात उन्होंने कही। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री की इस अपील का असर होगा, या मुख्यमंत्री के तौर पर अब किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप करते हैं उनसे? जी बिल्कुल, उनके बातों से एक चीज तो जाहिर है कि जो कुछ बदलाव आए थे, थोड़ा बहुत जो राज्य में हमने देखा था कि कुछ जगह पुलिस अफसर को बदला गया था, जो कि होता है हर एक चुनाव से पहले। तो जहां तक मुझे लगा इनके बातों से कि अभी कुछ और चेंजेस होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि 12:30 बजे से इनकी मीटिंग होगी सचिवालय में और उसके बाद वो 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि फिलहाल उन्होंने जो बात कही है, 2 बातें आपने सही कहा। पहला है कि वो कोविड पर बात करेंगी, और दूसरा ये कि उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप ये हिंसा को बंद करें, और ये वैसा पश्चिम बंगाल में ऐसा हिंसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि अब लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथों में आ गया है, तो ये अब उस पर कार्रवाई करेंगी। तो ये 3 बजे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें मेरे ख्याल से पता चलेगा कि ये कौन सी बातें जो है वो आगे अपना स्टेप्स लेने जा रही है और क्या क्या कार्रवाई करने वाली है इस पर। लेकिन हाँ, जैसे इन्होंने अपना ये स्वेरिंग इन खत्म हुआ, इसके बाद से पश्चिम बंगाल के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके लिए उसका सारा जिम्मेदारी अब आ जाता है मुख्यमंत्री पर, और हमें देखना पड़ेगा कि आज से सिचुएशन क्या होता है। मनीष, लंबे समय से आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, वहां की नब्ज जानते हैं, ममता बनर्जी को भी कवर कर रहे हैं। ये बताइए कि ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं, वो बातें आपको कितनी ईमानदार लग रही हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर वो पहले इस चीज की अपील करती तो ये हिंसा कुछ हद तक रुक सकती थी क्या?
देखिए, बिल्कुल ये सही कहा है आपने। ममता बनर्जी की जो बातें अभी हैं, ये शायद अगर पहले अगर कही जाती तो वाकई में उसका असर बहुत ज़्यादा होता। शायद उनके बयानों का ही असर देखने को मिल रहा है। ये जो हिंसा हो रही है, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 3 महीने का ये जो दौर था, बहुत इनएफिशिएंसी देखी गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा टेक ओवर कर लिया था और हिंसा उसी वक्त से ज़्यादा हुई। इन्होंने अपनी पूरा पलड़ा झाड़ लिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं 12:30 बजे जाऊँगी, सबसे पहले तो कोविड को लेकर एक मीटिंग करूँगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, पूरा एक नया सेटअप तैयार करूंगी। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में बिगड़ गई है। लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा चेहरा है और टीएमसी का पूरा दारोमदार नेता, एक सुप्रीमो है ममता बनर्जी। वो पश्चिम बंगाल को भी अच्छे तरीके से समझती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पश्चिम बंगाल की कोई कोने कोने से जो खबरें हैं उनको पता ना चल रही, उनको सब कुछ पता है। क्या वो एक मौखिक रूप से ऐलान नहीं कर सकती थी? क्या वो नहीं कह सकती थी कि जो वायलेंस हो रहा है थोड़ा धीरज बना के रखें? चुनाव आयोग तो कह रहा था कि जश्न ना मनाया जाए, लेकिन वो जिस तरीके से अगर स्ट्रांगली अगर कहती कि भाई जश्न नहीं मनाना है, सादगी से रहना है, हिंसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे आकर अगर कहती तो शायद वो परिस्थितियां जो अभी देखने को मिल रही है वो शायद ना देखने को मिलती, तो और भी अच्छा होता। बहरहाल अब दारोमदार उनके ऊपर पार्टी में प्रभाव है, बड़े से बड़े नेता तक पार्टी का उनकी बात सुनते हैं, फिर कार्यकर्ता ममता बनर्जी की बात नहीं सुने, ऐसा संभव नहीं हो पाता। हर्षवर्धन जी, जो कोविड-19 की स्थिति है जिससे पूरा देश जूझ रहा है, पश्चिम बंगाल उससे कहीं अलग नहीं है। क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सबसे पहले आप कोविड-19 के लिए पश्चिम बंगाल में किस तरह के कदम उठाने की आप देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अब ये अपील की है, लेकिन चुनाव में हमने देखा कि कहीं ना नियम थे, ना कायदे थे, ना कानून थे, और उस समय कोरोना के केस पश्चिम बंगाल में इतने बढ़े। देखिए अर्चना, बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम लोग चर्चा करते हुए ध्यान में करते हैं। आपने ये जो सवाल खड़ा किया है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, लगातार 2 बार की सरकार थी। चुनाव के दौरान वहां प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये भाजपा की मशीनरी पूरी जाती है। ममता बनर्जी कहीं भी किसी भी तरह से एक बार भी ये कहती हुई नहीं दिखती हैं कि अच्छा ये कोविड-19 है या ये वायरस फैला हुआ है, हम इसको रोकें। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा। अब अच्छा है कि उनको अभी ये लग रहा है, उन्होंने एक तो पूरा ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पर, लेकिन अब उनको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जगह देखा गया है कि जहां जहां चुनाव हुए वहां इस तरह की गाइडलाइंस का पालन न करने की वजह से बहुत तेजी से मामले फैले हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि दोनों प्राथमिकता होनी चाहिए, न तो कोविड की वजह से किसी की जान जाए, न राजनीतिक बदले की भावना की वजह से किसी की जान जाए। जयंतो जी, राजनीतिक हिंसा, चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है जिसमें बीजेपी का कहना है कि उसके 12 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कई तस्वीरें भी हमने देखी जिनको देखकर लगता है कि वाकई क्या ये चुनाव के बाद हो सकता है देश के किसी राज्य में? लेकिन मुख्यमंत्री का क्या सिर्फ इतना भर ऐलान कर देना कि बंगाल शांति पसंद है, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है? या लगता है कि जो हिंसा हुई है अभी तक उस पर भी कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री को करनी चाहिए और तभी संदेश जाएगा कि हिंसा वाकई बर्दाश्त नहीं है? अर्चना जी, यहां पर मुझे एक बात और जोड़ना है। अभी ममता जी ने ये कहा कि पिछले 3 महीने से जो है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अभी आपने कहा कि जो चुनाव के बाद जो हिंसा हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो हिंसा हुआ था वहां भी अगर आप देखें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथों में था? ये तो आज का नहीं है, इसके पहले भी अगर आप जाए तो पंचायत का जो चुनाव हुआ था वहां भी हिंसा हुई थी। वहां तो करीब करीब देखा जाए तो आधे से ज्यादा जगह जो है कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाए, वो लड़ ही नहीं पाए चुनाव। तो ये जो है, ये जो बार बार जो एक हिंसा कि जो ये घटना हमेशा चुनाव से पहले, चुनाव के समय, चुनाव के बाद ये चलता रहता है। तो अभी ठीक है, आपने अभी मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गई है और अब एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथों में आ गया है। लेकिन पिछला अगर हम देखें इतिहास तो ये हमेशा होता रहा है। तो ये अभी एक ऐसा कदम लेना पड़ेगा नए मुख्यमंत्री को कि जहां पर कि वो ये दिखा पाए देश को, दुनिया को, कि आज के दिन में जहां बिहार, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है हिंसा, चुनाव से रिलेटेड
हिंसा जो हुआ करता था वो बंगाल में अभी तक क्यों हो रहा है? जयंत जी, यानी कुल मिला के जो इतिहास है वो इतना दर्दनाक है, इतना रक्तरंजित है। और अभी कुछ समय पहले की बात है, जब चुनाव के पहले हमने हिंसा देखी, चुनाव के दौरान हिंसा देखी, तो अब मुख्यमंत्री किस तरह का कदम उठाएंगी उसी पर निर्भर करेगा कि लोग किस तरह से देखते हैं ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल को, खासतौर पर बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन वापस लौटेंगे। तो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। उन्होंने अब से कुछ देर पहले शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि वो एक बैठक करेंगी 12:30 बजे, जिसमें कोरोना के लेकर तमाम चर्चा की जाएगी कि किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। और उसके बाद 3 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें वो जानकारी देंगी मीडिया को कि बंगाल सरकार किस तरह के कदम उठा रही है, क्या कुछ किया जाएगा कोविड को लेकर। साथ ही साथ राजनीतिक हिंसा पर भी उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि यह हिंसा रुके और उनकी तरफ से ये ताकीद भी की गई कि हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर्षवर्धन जी, ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या पिछले 2 कार्यकाल से कुछ अलग आप इसमें उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीद करनी चाहिए। लोकतंत्र में जब कोई भी सरकार इस तरह से चुनी जाती है तो उससे उम्मीद करना ही होगा और उस उम्मीद पर खरा उतरने की जिम्मेदारी उस सरकार की है, उस पार्टी की है। सबसे बड़ी जो बात है कि वो अप्रत्याशित था, लेकिन क्या देश के लोगों को बंगाल की जो पहचान हो गई कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हिंसा, 45 वर्ष हो गए, 4.5 दशक कम नहीं होते। कहा जाता है कि कांग्रेस के समय में 60 के दशक में शुरू हो गया, लेकिन संस्थागत तरीके से 77 के बाद शुरू हुआ। 2011 में जब ममता जी आई पहली बार तो लगा कि वो इसी पीड़ा से गुजरी हैं, इसी तरह से उनके ऊपर हमला होता था जब वो युवक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, कांग्रेस में थी, फिर वो अपनी पार्टी बना कर रही। उसके बाद दोबारा वो मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 कार्यकाल वो ऐसे रहे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का, जिसको हम कहते हैं, कई डिग्री और ऊपर चला गया। और 2018 का पंचायत चुनाव, 2019 में सांसद और मंत्रियों पर हमला और 2021 में चुनाव के दौरान जिस तरह से अर्धसैनिक बलों के पीछे पड़ी वहां राजनीतिक भीड़, उन्मादी भीड़, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि ममता जी बंगाल के इस चेहरे को, जिसको रक्त रंजित चेहरा कहते हैं, उसको साफ कर दें तो मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी सफलता होगी, हम सब की उम्मीद होगी। बिल्कुल हर्षवर्धन, जब बंगाल में जाते हैं तो बंगाल की अलग तस्वीरें देखते हैं, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो हम सिर्फ राजनीतिक हिंसा की बात सुनते हैं। तो लगता है क्या बंगाल में सिर्फ यही होता है? ममता बनर्जी ने जो अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहा कि बंगाल अमन पसंद है, तो ये अब उनको करके भी दिखाना होगा, क्योंकि तीसरी बार वो लगातार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, तो उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी भी है। जयंत भट्टाचार्य और मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। जयंत भट्टाचार्य जी, तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब चुनी गई उसके बाद राज्यपाल ने भी बंगाल की हिंसा को लेकर बात की, वो पहले भी कहते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन करके शोक जताया था। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र के दखल की जरूरत है जो स्थिति वहां पर है, या अभी और इंतजार किया जाना चाहिए? शायद अभी वो समय नहीं आया है, चूंकि अभी अभी उन्होंने ये ओथ अभी ली है और इसके बाद उन्होंने ये कहा भी है कि वो कोशिश करेगी इस पर कुछ कार्रवाई करने का। लेकिन हाँ, अगर बात बहुत बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और कार्रवाई लेना पड़े। लेकिन अगर आप देखें तो हिंसा या कोविड दोनों घटनाएं जो पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, तो इसके साथ लड़ने के लिए मेरे ख्याल से फिलहाल जो है उनको थोड़ा समय देना चाहिए। ये बात सही है जो मैं पहले ये बोल रहा था कि ये हिंसा जो है ये चुनाव के बाद हुआ, ऐसा नहीं है, चुनाव से पहले भी होता रहा है, ये हमने देखा है। और लोगों पर किस तरीके का अत्याचार हुआ है वो भी हमने देखा है। लेकिन हाँ, जब ये खुद कह रही है तो मेरे ख्याल से जैसा कि एक डेमोक्रेसी में जैसा होता है, जी, हम भी जब बंगाल घूम रहे थे तो हम भी कई ऐसे लोगों से मिले जो चुनावी हिंसा के शिकार हुए, जिनके घर
तोड़े गए, घर जलाए गए, जो घायल हुए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारों से मिले। उम्मीद यही करते हैं हम सब कि अब शायद पश्चिम बंगाल की तस्वीर कुछ बदलेगी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी और जयंतो जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मनीष भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन वापस लौटेंगे। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।